Right. So we were actually discussing about the congenital adrenal hyperplasia, in which I told you in detail about the pathophysiology. Okay. अच्छा तो congenital adrenal hyperplasia is a deficiency of at least one enzyme required for the biosynthesis, the biochemical synthesis of cortisol from cholesterol, right? So what it basically means, first of all, we have cholesterol, okay, and these cholesterol with the help of an enzyme, it will be converted into the cortisol. Simple, okay. Like we discussed about 21 hydroxylase and 11 beta hydroxylase, fine. अच्छा, तो इसमें होता क्या है, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, राइट, जो कि डेफिशिएंट होते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दोज एंजाइम्स वी विल सी कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, फाइन। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, व्हिच आई डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, बट स्टिल लेट्स डू this. Accounts for approximately 90% of the congenital adrenal hyperplasia cases, right? So most common enzyme जो है इसमें कौन सा है? 21 hydroxylase. Classic form is most severe and presents as a newborn female with ambiguous genitalia and adrenal insufficiency, right? तो इसमें जो फीमेल्स होते हैं वो आपको कैसे दिखेंगे? उनके पास होगा एक तो ambiguous genitalia, right? It basically means कि उनका जो फॉर एग्जांपल क्लिटोरिस लेबिया में जो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए होंगे, okay, due to the obviously androgens, okay. Plus they will have adrenal insufficiency with or without life threatening salt wasting, okay. उसके बाद है नॉन क्लासिक, एक है हमारे पास क्लासिक, okay, in which we discussed about the ambiguous genitalia, adrenal insufficiency with or without life threatening salt wasting. उसके बाद है नॉन क्लासिक, नॉन क्लासिक क्या, it is actually a late onset from the present with androgen excess or it could be asymptomatic, cannot convert 17 hydroxyprogesterone to 11 oxycortisol, reduced cortisol synthesis, increased adrenal stimulation that will lead to increased ACTH and androgens. Fine. So we discussed these actually in very detail in the book. In the previous lectures, okay. उसके बाद 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, अब ये एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है तो क्या होता है? Second most common cause of adrenal hyperplasia, cannot convert 11-deoxycortisol to cortisol or 11-deoxycorticosterone to corticosterone, okay, also leading to increase adrenocorticotropic hormone and androgens. अब ये मैं रीड किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि I already discussed them in very detail, okay, in the previous 2-3 lectures I uploaded, so I discussed them in very detail. So the next patient आपके पास जब आता है, history of physical examination, the very first thing androgen excess, genitalia ambiguity, premature puberc, okay, puberty, menstrual irregularities, infertility, hirsutism, acne and rarely a palpable abdominal mass. तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले एंड्रोजन एक्सेस, जो कि हमने डिस्कस किया था। एंड्रोजन एक्सेस की वजह से क्या है, जेनिटेलिया, एम्बिगुअस जेनिटेलिया आपको मिलता है स्पेशली फीमेल्स के अंदर, राइट। प्री मेच्योर प्यूबार्की, राइट, स्पेशली मेल्स के अंदर वो जो हमने डिस्कस किया था कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होता है उनमें। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होता है इन फीमेल्स में, राइट। इनफर्टिलिटी हो सकता है इससे। हिर्सुटिज्म, राइट, हिर्सुटिज्म का मतलब क्या? एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ होता है बॉडी के ऊपर, दैट इज़ हिर्सुटिज्म। इसी तरह से एक्नी, एक्नी भी किस वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ द एंड्रोजन्स, राइट। ये एंड्रोजन्स क्या करते हैं? यही एंड्रोजन्स होते हैं जो कि जाके फॉर एग्जांपल हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, राइट, हमारे फेस के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर, सेबेशियस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करे, राइट। तो इसीलिए से एक नहीं होता है एंड्रोजन्स की वजह से, एंड रियरली अ पल्पेबल एब्डोमिनल मैस। अच्छा, सो फार वी हैव डिस्कस टिल हियर। उसके बाद क्या है? लिसन वेरी केयरफुली, ओके। उसके बाद है, लेट मी कवर माई सेल्फ फर्स्ट। अच्छा, so this is diagnosis. In diagnosis, the very first thing that you have to do, you will do physical examination, okay. After the physical examination, you will check two enzymes, okay. The very first one is the 21 hydroxylase, the second is 11 beta hydroxylase, right. आप जब 21 hydroxylase चेक करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है? ब्लड के अंदर आपको क्या मिलता है? इंक्रीज लेवल ऑफ द 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। लेवल आपको क्या मिलता है इसमें? इंक्रीज्ड हुआ मिलता है, ओके, राइट। क्योंकि इसमें है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, राइट। तो ये है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक एंजाइम विच इज़ कॉल्ड इज द 21 हाइड्रोक्सिलेज, राइट। अगर ये एंजाइम काम करना छोड़ दे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बॉडी के अंदर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन रेज्ड मिलेगा ब्लड के अंदर, राइट। क्योंकि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा इनटू 11 डीऑक्सीकोर्टिसोल, राइट। तो इसीलिए से ये, इसी वजह से ये जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है ये आपको रेज्ड मिलेगा ब्लड में, ओके, राइट। अच्छा, दिस इज पार्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्क्रीन।
Cosyntropin, adrenocorticotropic hormone stimulation test, gold standard but not necessary if elevated 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन। ओके, उसके बाद आप क्या टेस्ट करते हो? 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, राइट। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपको क्या मिलता है? सीरम के अंदर आपको 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल आपको रेज्ड मिलता है एंड डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक एंजाइम, राइट, विच इज कॉल्ड इज दी 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम ख़राब हो जाता है या ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन और 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल है, ये दोनों कन्वर्ट नहीं हो पाते इनटू दी एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, जिसकी वजह से क्या होगा? 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, इसी तरह से 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज होगा सीरम के अंदर। ओके, तो आपको क्या दिखाता है? 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। उसके बाद है बोथ नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेवल। कोर्टिसोल आपने देखना है, कोर्टिसोल भी इसमें आपको क्या मिलता है? डिक्रीज मिलता है। ओके, कोर्टिसोल जाहिर सी बात है इसमें डिक्रीज होगा। ओके, उसके बाद क्या है? एंड्रोस्टेनिडियोन एलिवेटेड इन 21 हाइड्रोक्सिलेज एंड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ऑल्सो कंसिडर एड्रिनल और ओवेरियन न्यूप्लेजम्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो विच इज़ कॉल्ड एज दी 21 हाइड्रोक्सिलेज, राइट। अब अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट के अंदर डेफिशिएंट हो तो जाहिर सी बात है वो जो पेशेंट है वो एक तो कोर्टिसोल नहीं बना पाएगा, उसके अलावा एल्डोस्टेरोन नहीं बना पाएगा, राइट। लेकिन एंडोस्टेनिडियन उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्टेनिडियन आप देख रहे हो ये 21 हाइड्रोक्सिलेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोस्टेनिडियन, राइट। तो ये क्या? ये इंडिपेंडेंट है, राइट, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टूड? ओके, इसीलिए एंड्रोस्टेनिडियन आपको रेज्ड मिलता है। इसी तरह से डी हाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन भी आपको रेज्ड मिलता है ब्लड के अंदर। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों जितने भी फॉर एग्जांपल ये हार्मोन्स है ये 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम या 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, राइट। अच्छा, तो एंड्रोस्टेनिडियोन elevated in 21 carboxylase and 11 beta carbo hydroxylase, सॉरी, ओके, हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। चाहे वो 21 हो चाहे 11 बीटा हो, राइट, दोनों में आपको एंड्रोस्टेनिडियोन क्या मिलता है? एलिवेटेड मिलता है। इसी तरह से डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, राइट, ये भी आपको एलिवेटेड मिलता है इन द 21 हाइड्रोक्सिलेज एंड 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी इन बोथ ऑफ देम। ओके, इसी तरह से इफ सॉल्ट वेस्टिंग will also have reduced aldosterone, reduce sodium, increase potassium and increase renin associated with hypovolemia. If you remember मैंने आपको बताया था, राइट, कि इसमें क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन भी है इनके अंदर, स्पेशली कौन सा वाला? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में, जिसमें क्या होता था? जिसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल एक तो एल्डोस्टेरोन कम होता था बॉडी के अंदर, राइट। इसी तरह से एल्डोस्टेरोन जब कम होता है तो सोडियम और वाटर हमारे किडनीज में से वो क्या होते हैं? वो वेस्ट होते हैं, राइट। ये होता है फॉर एग्जांपल ये सोडियम और ये वाटर सारे हमारे किडनी से वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो पोटासियम और उसके अलावा हाइड्रोजन है ये भी हमारे बॉडी से निकल नहीं पाएंगे, राइट, एंड दैट विल लीड टू हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस। आई डिस्कस देम इन वेरी डिटेल। ओके, तो हाइपरकैलेमिया होता है उससे। ओके, इसी तरह से एसिडोसिस होता है एंड इंक्रीज रेनिन एसोसिएटेड विद हाइपोवोलेमिया प्लस हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों होता है? क्योंकि कोर्टिसोल कम है बॉडी में। ओके, इसी तरह से जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड, राइट। एग्जांपल डेक्सामेथासोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्यों देते हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है क्या होता है? कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है, राइट। सो कोर्टिसोल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या देते हैं? डेक्सामेथासोन, right. So after dexamethasone, medical therapy for adrenal and ovarian disorders prevents new terminal hair growth but does not resolve hirsutism. Okay. तो इतना याद रखना है आपने कि सबसे पहले आपने क्या देना है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, क्योंकि कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दोगे आप तो वो कोर्टिसोल को रिप्लेस करेगा, सिंपल। इसी तरह से एडिशन ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स थेरेपी जैसे कि फ्लूड्रोकोर्टिसोन। ओके, हमने डिस्कस किया था ना कि इसमें क्या होता है? एक तो कोर्टिसोल की कमी होती है, उसके अलावा इसके अंदर एल्डोस्टेरोन की कमी होती है, राइट। ओके, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं तो कोर्टिसोल को रिप्लेस करने के लिए आप डेक्सामेथासोन देते हो, एल्डोस्टेरोन को आप रिप्लेस करने के लिए फ्लूड्रोकोर्टिसोन देते हो, सिंपल। ओके, इफ साल्ट वेस्टिंग और हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट। उसके अलावा आपके पास है जैसे कि लेज़र एब्लेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और कन्वेंशनल हेयर रिमूवल टेक्निक्स फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर, राइट। सो दिस इज अबाउट द congenital adrenal hyperplasia. If you have any question
you can ask me in the comment section. Thank you so much.